Okay, so recording has started. Trading big gaps. With this, we have an assumption that we do not have any overnight position and we are trading intraday. Okay, the big gap or gap up or gap down. So, only thing we have to remember when we are trading intraday, as I have told in the last session, the first part, okay, our focus should be on 5 minutes time frame only. Okay, trading this big gap up means at least there should be a gap of sort of 1% or something like that. Okay, because we are on an index of 18,000. If you say a gap of 15, 60, 70, 80 points, that is not a gap. Gap should be a little wide and it should be properly visible on chart. For example, this was not a big gap. Okay, this was not a big gap. Big gaps are like this. If you see on the daily chart, like these are the gaps. Okay, this is the gap, this is the gap, here this is the gap, this is the gap. See this how clearly these gaps are visible. Okay, these are the gaps. So these sort of gaps, how we should play in intraday. The only thing that we should remember, with all the three conditions that I have discussed in the uh, first session, along with those conditions, we will wait for the prices to come near to 5 minutes EMAs with the information in our mind whether the crossover is being protected by the party means either bulls. For example, if we are trading, if we have gapped up, if we have gapped up, in that case we will try to see what is happening on the bullish crossover. If the bullish crossover is being protected by the bulls, okay, then we will try to play the retest success instead of going opposite. We will try to play for the direction in which the gap has been created. कोई कुछ बोल रहा है क्या? ओके, तो जिस डायरेक्शन में गैप हुआ है उस डायरेक्शन के लिए हम प्ले करेंगे कब? जब 5 मिनट्स ईएमएज या तो प्राइसेस के पास चले आएँ या प्राइसेस खुद चल के 5 मिनट्स ईएमएज के पास चले आएँ और वहाँ से अगर रीटेस्ट सक्सेस होने लगता है, रीटेस्ट सक्सेस हम लोगों ने पहली क्लास में देखा है क्या होता है, वो रीटेस्ट का सक्सेस होने लगता है तो हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे जिस डायरेक्शन में गैप हुआ है। अगर गैप डाउन हुआ है तो प्राइसेस हम लोग वेट करेंगे 5 मिनट्स ईएमएज तक आने पर और वहाँ से जब रीटेस्ट सक्सेस मिलेगा, मतलब 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर प्राइसेस ईएमएज को टच करते हैं और फिर वहाँ से वापस नीचे आते हैं। ठीक है, वहाँ से वापस नीचे आते हैं, तब हम प्ले करेंगे डाउन साइड के लिए। बट दैट रीटेस्ट सक्सेस शुड बी देयर ऑन द चार्ट. That is the thing. That is the first criteria for trading the big gaps. The second one is कि whenever the gap up or gap down is happening, before punching your order just on the basis of 5 minutes retest success theory, go to the time frame a little higher. It may be
1 hour, 3 hour or even 1 day. 1 day पर हम कब जाएंगे? इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब कॉन्फ्लुएंस ऑफ ईएमएज होने लगे. फॉर एग्जांपल 3 आवर्ली ईएमएज और 1 डे ईएमएज ऑलमोस्ट एक दूसरे के बहुत पास आ चुके हैं. फिर हमें दोनों देखना है. लेकिन अगर 3 आवर्ली और 1 डे ईएमएज के बीच में अभी भी देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट गैप, तो हम 3 आवर्ली को देख के भी डिसीजन ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल कल को एक गैप अप होता है और इसमें हम लोग 100 SMA को भी इंक्लूड करेंगे. इस कंसीडरेशन में हम लोग 100 SMA को भी इंक्लूड करेंगे. फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल केस हम लोग डिस्कस करते हैं. वी आर एट 854 राइट नाउ. ओके, वी आर एट 854 and prices gap up tomorrow maybe 90 100 points और 150 या ऐसा कुछ gap up होते हैं. So we have this information available right now कि 17945 is the 100 SMA. और उसके पहले भी एक इंफॉर्मेशन है कि 100 SMA के पास से प्राइसेस ने रीटेस्ट सक्सेस किया और वहीं से प्राइसेस रिजेक्ट हुए हैं. ये दो इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है. सो इन दैट केस वी विल ट्राई टू मैप द प्राइस एक्शन इन द इनिशियल फ्यू मिनट्स, मे बी 15 मिनट्स 20 मिनट्स के 5 मिनट्स ईएमएस पे क्या हो रहा है. इन दैट केस नाउ इफ इट ओपन्स very high, so if you see here that theory that I have told you के see the distance. okay, 100 SMA कहाँ पर है, 5 मिनट CMS कहाँ पे है और प्राइसेस ओपन हो रहे हैं यहाँ पे. ओके, तो क्या इस केस में हम 5 मिनट्स EMAs के बेसिस पे ट्रेड करेंगे इमीडिएटली? द आंसर इज नो. वाई? बिकॉज यू ऑलरेडी हैव an information available apart from the 5 minutes EMA reading that here something has already happened in the past. Okay, in that case even if on 5 minutes charts prices come close to the 14 EMA or maybe 21 EMA and retest success is seen, we might not trade for the long side. Why? Because the higher time frame chart is telling the story otherwise. I think this is clear. If not, I'll repeat one more time. Yeah, Harvey, please repeat once again. Yes. See, Manoj, what I told, in case of big gap up or gap down, we will wait for the prices to come near to the 5 minutes EMAs, and on the basis of retest success and rejection theory, we will attempt a trade in the direction of the gap. For example, if the gap up has happened, then our first intention should be to trade long based on the 5 minutes EMA's retest success. What does it mean? कि prices opening higher coming down to test this 14 EMA or maybe 21 EMA, but there is no dent on the crossover condition, like bullish crossover is still intact and prices are also hovering around the 21 or 14 EMA, and we are seeing an obvious retest success. In that case, we will be, our intent
our plan, our effort should be to trade on the long side only. But at the same time, it does not mean that this will be rewarding every time. Why? Because the next step I am telling you कि just before punching the order basis 5 minutes, we must also look at the higher time frame, and it must be in our mind कि what kind of action has been in the past. For example, if you see, suppose prices opens 125, 30, 100 points gap up, but exactly there the 100 SMA daily is placed, and before that the this price rejection from very near to 100 SMA is telling something. So there might be, I am not saying, but there might be one more chance that the rejection will happen again from very near to the 100 SMA, or maybe above the 100 SMA, or maybe little tad below the 100 SMA. So here, just on the basis of 5 minutes retest success, we might not trade the long side, because the distance from 5 minutes EMAs and 100 SMA would be quite large here, would be quite wide. And in that case, if prices start falling, so even if the bullish crossover is intact, prices might go down very near to 100 SMA, and our SL would be very deep. So this, just before punching the order, we must keep in mind the situation, the location of the higher time frame EMAs. Now let us, I think it is clear, Manoj, this time. Yeah, it's clear. Thanks. Okay, welcome. Now let us discuss the, सर yes, सुशांत हाँ सुशांत बोलो. सर अगर जो 40 और 20 EMA और 100 SMA डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा हाँ, तो वेट करना है या क्या करना है इसमें? नहीं, मोस्टली केसेस में हमको वेट ही करना है शुरू में, ठीक है. ओके, इन इन जब इन तक इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमको वेट ही करना है, लेकिन हमको, क्योंकि ये हम लोग बात कर रहे हैं ऑफ मार्केट में, ठीक है. रियल टाइम का मार्केट हमेशा बहुत डिफरेंट होता है जो हम बात कर रहे होते हैं. तो उस समय पर हमारी कोशिश यही रहती है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम EMAs पर आखिर बाज़ार कर क्या रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक इंस्टेंस दिखाता हूँ. आई स्टिल रिमेंबर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप अगर देखो, ठीक है, आप यहाँ पे अगर ये वाला जो फॉल देखो पूरा, ठीक है, हालांकि इस फॉल का काफ़ी अच्छा पोर्शन हमें भी मिला था, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है, ऑलमोस्ट 2x का भी एक हम लोगों को ट्रेड मिला था. लेकिन आप देखो, ये इवेंट का दिन था, तो इवेंट के दिन में केवल 5 मिनट्स EMAs के बेसिस पर आपको लॉन्ग कर देना, क्योंकि अगर हम ये केवल 5 मिनट्स के बेसिस पे इस दिन को ट्रेड करते तो हम फेल हो जाते यहाँ पे. क्यों? क्योंकि ये वाला जो पैच था, ये हमको क्या बता रहा है, इट इज़ टेलिंग कि आफ्टर गोइंग बिलो दी 14 एंड 21 EMA, बुलिश क्रॉसओवर पे कोई डेंट नहीं लगा. यहाँ पर आप देखो, बुलिश क्रॉसओवर पे देयर वाज नो डेंट, और प्राइसेस शूट अप कर गए, एंड अगेन प्राइसेस आर कमिंग बैक टू दी 14 एंड 21 EMA. तो यहाँ पर इफ़ वी आर नॉट वेटिंग एंड वी आर जस्ट एंटिसिपेटिंग कि अब ये रीटेस्ट सक्सेस ले करके ये ऐसा हो जाएगा, बट बिफोर दैट एक इंफॉर्मेशन अपने पास यहाँ पर था दैट वी इम्प्लीमेंटेड, एंड व्हाट वाज दैट इंफॉर्मेशन, द हायर टाइम फ्रेम चार्ट. तो हायर टाइम फ्रेम चार्ट, इफ यू सी, bearish crossover is there, and we are very close to the 100 SMA. So here
if you are taking the short trade, so your SL is very small. Okay, sir. But if you are taking the long trade here, even after knowing कि bearish crossover तो 1D में इंटैक्ट है, तो अगर 1D में bearish crossover बना हुआ है तो कुछ प्रेशर आ सकता है, बट वो Okay. हाँ वो प्रेशर इतना बड़ा आ जाएगा कि वो प्रीवियस स्विंग लोज, पिछले कई दिन के प्रीवियस स्विंग लोज को भी ब्रेक कर देगा। वो किसी की भी बुक में नहीं था, किसी की भी रीडिंग्स में नहीं था, बट मार्केट डिड दैट, और पूरा फॉल हमें नहीं मिला, बट टू सम एक्सटेंट हमने कम से कम हम गलत डायरेक्शन में नहीं गए। Okay, sir. Just because of seeing this smaller time frame, just because of seeing this smaller time frame action, हम गलत डायरेक्शन में जाने से बच गए, because somewhere in our mind the higher time frame readings were also ticking there. Clear, Sushant? Oh, okay, sir. Yes. हाँ, now coming to the gap down case. जब बहुत बड़ा गैप डाउन मार्केट में हो जाए, इन दैट केस ऑल्सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि जब तक 5 मिनट्स EMAs के पास प्राइसेस नहीं आएंगे, ठीक है, हमारा दिन शुरू नहीं होना चाहिए। आवर रीडिंग्स मस्ट स्टार्ट, आवर प्लानिंग मस्ट स्टार्ट ओनली फ्रॉम द लोकेशन where 5 minutes EMAs are heading towards this prices, या prices are heading towards 5 minutes EMAs, और वहाँ पे रीटेस्ट रिजेक्शन या रीटेस्ट सक्सेस सॉर्ट ऑफ कुछ बन रहा है, उसके बाद अगर कंफर्मेशन हमारा हायर टाइम फ्रेम दे देता है तो हम ट्रेड लेंगे। फॉर एग्जांपल, अब बात करते हैं कि कल को गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्राइसेस कल यहाँ खुल जाएं, या 100 SMA के नीचे खुल जाएं, या यहाँ खुल जाएं, मतलब 100-110 ऐसा कुछ खुल जाए मार्केट, या 1% डाउन खुल जाए, 170 पॉइंट डाउन खुल जाए, उस केस में हम क्या करेंगे? तो फॉर एग्जांपल 1% विल कम अराउंड 180 पॉइंट, ठीक है, तो अगर 180 पॉइंट खुला मार्केट तो वो 100 SMA के पास खुल जाएगा, या 100 SMA से थोड़ा सा नीचे खुल जाएगा। तो क्या हम तुरंत ट्रेड ले सकते हैं? ये कहाँ से कंफर्म होगा? ये कंफर्म होगा हायर टाइम फ्रेम। फॉर एग्जांपल हमने अर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया, अब अर्ली टाइम फ्रेम पे जो EMAs हैं दे आर अराउंड 700, ओके, फिर हमने देखा 3 अर्ली टाइम फ्रेम, 3 अर्ली टाइम फ्रेम, सो 3 अर्ली टाइम फ्रेम पर ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का डिफरेंस इज देयर बिटवीन 100 SMA एंड 3 बिटवीन अर्ली EMAs एंड 3 अर्ली EMAs। अब यहाँ पे अगर प्राइसेस थोड़ी देर रुकते हैं, यहाँ पर प्राइसेस अगर थोड़ी देर रुकते हैं और नीचे आने लगते हैं, सो इन दैट केस वी विल नॉट वेट मच। वाई? बिकॉज वी मे वेट, ऐसा नहीं है कि हम मतलब तुरंत कूद जाएंगे, बट आई हैव टॉट इन प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो कि कई बार ऐसा टाइम आएगा जब हम बहुत ज़्यादा वेट नहीं करेंगे कि हमें 5 मिनट्स EMAs के पास प्राइसेज आ जाएं। क्यों? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम हमको ये बता रहा है कि बेरिश क्रॉसओवर 3 अर्ली पे इंटैक्ट हो करके प्रीवियस क्लोजिंग आई है, बुलिश क्रॉसओवर नहीं बना है, बेरिश क्रॉसओवर हुआ है। तो अगर मार्केट्स ये सर्किल के नीचे खुलते हैं कहीं, और वहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं और ऊपर नहीं जा रहे हैं प्राइसेस,
अगर 3 आवर्ली ईएमएस के ऊपर प्राइसेस पहले कुछ मिनट में या 20 मिनट में या आधे घंटे में नहीं जा पा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो 5 मिनट्स का खेल हुआ है पिछले पिछले दिन में, ये जो 5 मिनट्स का ये खेल हुआ, ये सारा नलीफाई होने वाला है। और उस केस में हम ये वेट नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा कि प्राइसेस यहाँ खुल के मतलब ये ईएमएस बहुत ज़्यादा बिल्कुल पास में आ जाएं हमारे प्राइसेस के, इस तरीके का हम वेट नहीं करेंगे। बिकॉज मार्केट ने ऑलरेडी हमको बता दिया है क्या, 3 इन्फॉर्मेशन कि एक तो बड़ा गैप डाउन लगा है और 100 SMA के नीचे भी हम जा रहे हैं, और साथ में 3 आवर्ली ईएमएस के नीचे भी प्राइसेस जाना शुरू हो गया है। एंड देयर इज़ नो साइन ऑफ प्राइसेस बाउंसिंग बैक इमीडिएटली। बिकॉज अगर पहले दिन प्रीवियस दिन मार्केट्स ने आपको ये मूव दिखाया है और उसके बावजूद भी अगर मार्केट्स बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो रहे हैं और अगर प्राइसेस तुरंत ऊपर नहीं आ रहे हैं, मतलब तुरंत का मतलब कि कुछ पीछे के मैं आपको डेज आई विल शो यू सम डेज इन द पास्ट के जब गैप डाउन होने के बावजूद मार्केट शॉर्ट अप और हमने भी फर्स्ट टिक के साथ में ही एंटर कर दिया था ट्रेड में, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ पर अगर प्राइसेस तुरंत 100 SMA के ऊपर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो मूव है ये फॉल्स मूव था दोस्तों। इट सिंपली मीन्स दैट इन दैट केस व्हाट मार्केट कैन डू इन द बेस्ट केस सिनेरियो कि वो यहीं पर कहीं मार्केट हॉवर करेगा और इस ये जो टाइम स्पेंड यहाँ पर करेगा उसकी वजह से जो 21 EMA और 14 EMA है दे विल स्टार्ट कमिंग डाउन एंड स्लोली इट माइट बी पॉसिबल कि 21 EMA ऊपर चला जाए, 14 EMA नीचे आ जाए और बेरिश क्रॉसओवर हो जाए, लेकिन तब तक प्राइसेस यहाँ आ चुके होंगे। तो उस केस में हम इस बेरिश क्रॉसओवर का वेट नहीं करेंगे बिकॉज हायर टाइम फ्रेम चार्ट पे ऑलरेडी प्राइस ने इंडिकेट दे दिया है कि प्रीवियस डे में सारे बुल्स को ट्रैप किया गया है बिकॉज प्राइसेस ओपनिंग बिलो 3 आवर्ली EMAs एंड स्टिल दे आर नॉट गोइंग अपवर्ड। तो हम वहाँ पर ये मान लेंगे कि ये जो गैप है ये अपना खेल दिखाएगा नेक्स्ट डे without giving an attempt to go above the 21 or 14 EMA. So that is how I would be trading this big gap down. लेकिन for example अगर आप देखो एक सिनारियो आप देखो कि जैसे कि ये सिनारियो है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला सिनारियो यहाँ पे अगर बहुत बड़ा गैप डाउन लग जाए इस सिनेरियो में तो आपको फिर वेट करना है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन लग के मार्केट खुले, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है कि डेली चार्ट पे बुलिश क्रॉसओवर इज इंटैक्ट और प्राइसेस वहीं कहीं गैप डाउन करके खुल रहा है, तो इसका मतलब अभी हमको वेट करना है इस 14 EMA के ऊपर थोड़ी देर, 30 मिनट्स 40 मिनट्स आर एनफ एंड देन वी विल ट्राई टू सिंक्रोनाइज आवर रीडिंग्स ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम। फिर वो हमारा डेली का जो रूटीन है रीटेस्ट रिजेक्शन को आइडेंटिफाई करके ट्रेड बनाने का, दैट विल कम इनटू पिक्चर। बट मार्केट बड़ा गैप अप खोल दे और हम तुरंत शॉर्ट कर दें, ऐसे भी दिन आए हैं मार्केट में। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको, इस जगह पर हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी कि बेरिश क्रॉसओवर बना हुआ है बाजार में, ठीक है, लेकिन मार्केट्स ने एक बड़ा गैप अप के साथ में खोला प्राइस को, तो उस बड़े गैप अप के साथ में हम 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर अगर जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा कि एक बहुत अच्छा खासा बुलिश क्रॉसओवर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हुआ है और
अगर हम वो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर लें लॉन्ग साइड में तो वी आर ट्रैप्ड, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले क्लास में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कहीं पर के हायर टाइम फ्रेम जो है वो डोमिनेट करता है लोअर टाइम फ्रेम ईएमएस को, ये वाला पॉइंट। द हायर टाइम फ्रेम ईएमएस जनरली डोमिनेट द लोअर टाइम फ्रेम ईएमएस। तो यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी कि वो खुल ही 21 ईएमए पर रहा है, गैप अप भी हो रहा है तब भी वो 21 ईएमए पर खुल रहा है एंड द बेरिश क्रॉसओवर इज इंटैक्ट। तो यहाँ पर तो हमको वेट ही नहीं करना है शॉर्ट ट्रेड जाने में, इवन मार्केट ऊपर खुल रहा है। हमने कुछ वेट नहीं किया था उस दिन, दैट डे आई रिमेंबर कि हमने बाज़ार खुला और हमने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कल ये 21 ईएमए की लाइन आप देख लीजिए, अगर बाज़ार यहाँ खुल जाए कल तो शायद कल, क्योंकि ये एक तो बहुत बड़ा गैप अप नहीं खुलेगा, ये छोटा सा ही गैप अप है, तो अगर आप 21 ईएमए डेली की लाइन को पकड़ के चलते हो और आप अपने सेटअप पे बिलीव करते हो कि एक बार ये उसके ऊपर जाने के बाद में रिजेक्शन आया है, तो यहाँ से शायद वो एक ऐसी एक बड़ी रेड कैंडल फिर से बना सकता है बाज़ार। यहाँ पे एक रेड कैंडल फिर से बना सकता है, क्योंकि अभी भी डेली चार्ट पे बेरिश क्रॉसओवर इंटैक्ट है। तो कल को ऐसा नहीं हुआ कि बाज़ार अगर 60 पॉइंट ऊपर खुल जाएगा तो हम ये 5 मिनट्स का लालच देख करके, क्योंकि बेरिश बुलिश क्रॉसओवर 5 मिनट्स पे इंटैक्ट है और प्राइसेस यहाँ पर खुल जाएं तो हम यहीं पे लॉन्ग पकड़ लेंगे, नेवर। वाई? बिकॉज दिस यू हैव ऑलरेडी लर्नड हियर कि हायर टाइम फ्रेम पर बाज़ार आपको खुल के ही इस जगह पर दे रहा है, या हम कहते हैं बाज़ार यहाँ पर भी खुलेगा तो आपको लॉन्ग साइड में नहीं जाना है। एक रीटेस्ट का वेट करना है मैक्स टू मैक्स, और जैसे ही 5 मिनट्स ईएमएस के नीचे प्राइस आएंगे हम वहाँ पे क्या करेंगे, एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दैट इज़, ये मैं आपको केवल एक ब्लूप्रिंट देने की कोशिश करता हूँ हमेशा जब भी मैं ये सेशंस क्लासेस, तो एक ब्लूप्रिंट है कि ऐसा ट्रेड आपको बहुत कम डेंट देगा लेकिन जब रिवार्ड देगा तो बहुत बड़ा रिवार्ड देगा। अब एक मैं आपको दिन दिखाता हूँ, एक नॉट ओनली दिन बट एक वो फेज़ दिखाते हैं। दिस वाज द फेज़, दिस वाज द फेज़। मार्केट ने एक बहुत बड़ा गैप डाउन से खोला था यहाँ पे, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम आप 5 मिनट का चार्ट लगा के देखोगे इस दिन तो आपको लगेगा कि दुनिया ख़त्म है, लेकिन डेली पे बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ है। तो आपका इस जगह पे स्टॉप लॉस नेग्लेजिबल है ऑप्शन ट्रेड में, कि जैसे ही खुला बस आपको पकड़ लेना है यहाँ पे, क्योंकि वो खुल ही 21 ईएमए पे रहा है, और जैसे ही वो इसके नीचे आने लगता है थोड़ी देर 5-10 मिनट सस्टेन करने लगता है, आप हमको निकल जाना है। लेकिन हमने यहाँ पे लॉन्ग एंट्री बनाई थी। और सेम केस एक और, क्योंकि यहाँ पर तो काफ़ी बड़ा गैप अप हुआ था, और एक और दिन था ऐसा, ये दिस वाज द डे कि मार्केट खुल ही 14 ईएमए 1D पे रहा है, लेकिन ऊपर से कितने पॉइंट डाउन खुल रहा है, ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा पॉइंट डाउन खुल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे 5 मिनट्स का चार्ट देखो जाके, मतलब पहली 9:15 की जो टिक्स लग रही होंगी, आपको लगेगा कि मतलब मार्केट ये कर देगा आज के ही दिन में, लेकिन मार्केट ने वो वाला मूव तो दिया आपको, लेकिन वो आपको पूरी तरह से परेशान करने के बाद वो मूव आया है।
तो आप जब गैप अप लगे बड़ा या गैप डाउन लगे बड़ा, तो आपके दिमाग में 5 जो डिसीजन पॉइंट होगा वो तो 5 मिनट्स ही होगा, लेकिन उसकी जो बैकिंग है उस डिसीजन को जो जो क्राइटेरिया सपोर्ट करेगा, दैट शुड बी आइदर 1 आवर्ली EMA, 3 आवर्ली EMA और दिस 1D EMA। आपको वो देखने के बाद अपना ऑर्डर सिस्टम में डालना है या कोई ट्रेड को प्लान करना है। ऐसा नहीं है कि हर बार बाज़ार गैप अप खुला तो वो ऊपर ही चलता चला जाएगा, या हर बार बाज़ार नीचे खुला तो नीचे ही चलता चला जाएगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि लार्जर टाइम फ्रेम पे क्रॉसओवर इंटैक्ट हैं, बाज़ार उसके ऊपर खुल रहा है या बाज़ार उसके नीचे खुल रहा है। जैसे कि अभी यही इसी सिनारियो को हम कितने ही तरीक़ों से नहीं डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे तो अभी बियर्स को कोई हार्म नहीं है जब तक के इन EMAs 21 और 14 EMAs के ऊपर एक कन्विंसिंग क्लोजिंग ना आने लगे। हमने ये मूव पकड़ लिया था क्योंकि हमारे पास 100 SMA 5 मिनट्स का लर्निंग था, लेकिन कल भी हम उसी तरह से उतना बड़ा मार्केट में मूव आएगा नहीं आएगा क्या होगा ये सब कल की बातें हैं। लेकिन अभी हमारे पास क्या लर्निंग है कि मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप भी खुलता है तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ लॉन्ग ट्रेड के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि 2 बजे तक भी यहीं कहीं घूमता रहे और उसके बाद फिर यहाँ से सीधे वो रिजेक्शन लेके नीचे आ जाएगा, ठीक है, या शुरू में ही यहाँ पहुँच जाए उछल के, बिल्कुल मतलब खुले 50 रुपये और पहुँच जाए 130 रुपये और वहाँ से रिजेक्शन ले ले, या मतलब कुछ भी सीन बन सकता है ना। लेकिन जब आपको क्योंकि ये दिन में एक बार इसकी रीडिंग चेंज होगी, दैट इज़ वेयर द एज ऑफ EMA ट्रेडिंग इज़, कि अगर आपने 1D EMA देखा है कि अभी वो 17,854 पर है, तो कल खुलते के बाद हर 5 मिनट में ये चेंज होगा बहुत 100 रुपये ऊपर नीचे, ऐसा नहीं होगा। तो आपको एक बार सुबह उठ के आपने देख लिया कि भाई रफली ये 850 के आसपास है, बस। अब मार्केट खुला ही 850 पे कल, तो हम क्या देखेंगे, हमको ये रीड करना है कि भाई मार्केट ने 14 EMA के ऊपर क्लोज किया, लेकिन आज वो इसके नीचे खुल रहा है, मतलब 854 के नीचे खुलना ही बहुत डेंजरस साइन हो जाएगा दोस्तों। आप क्या समझते हैं? आप इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखिए, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखिए, ये कल भी ऐसे पैरेलल ही रहेगा अगर मार्केट फ्लैट टू निगेटिव ओपन हो जाए। तो यहाँ तो बुल्स के ऊपर मतलब पहाड़ टूटने जैसी कंडीशन है कि इतना एफर्ट करने के बाद यहाँ 100 SMA 5 मिनट से इतना स्ट्रगल करने के बाद आज भी बाज़ार ऊपर नहीं खुल पाया। तो ये बुल्स की अपने आप में पहली जो है वो डिफीट हो जाएगी, और कहीं प्राइस यहीं सस्टेन कर गया 10, 15, 20, 30 मिनट, तो फिर बियर्स हावी होने लगे, क्योंकि आप देखिए कि 3 आवर्ली पे ऑलरेडी बेरिश क्रॉसओवर हुआ है। तो ये सब चीज़ें क्या है, आप जब बहुत बार मतलब हज़ारों बार ये सब चीज़ें अपनी आंखों के सामने होते हुए देख लेते हैं, तो तब आप रीडिंग के बेसिस पे जज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि बाज़ार कभी आसान नहीं था किसी के लिए भी, न में हमसे भी बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स होते हैं। लेकिन जब आप बहुत बार ये रीडिंग्स पे काम करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं एक आपको कंफर्ट आ जाता है कि चलो ठीक है, दो बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन जो बाज़ार बता रहा है हम करेंगे उसी के हिसाब से, हम कोई गेसवर्क नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कल के दिन में आप देखो, फ्राइडे के दिन में गेसवर्क क्या होता, और एक बहुत बड़े ट्रेडर हैं वो ट्विटर पे उन्होंने बोल दिया था कि मैं 870 का या पता नहीं कुछ ऐसा स्टॉप नहीं 794 का उन्होंने स्टॉप लॉस बताया था, और पूरी जनता को बोला था कि शॉर्ट कर दो, ठीक है।
ये गेस वर्क था कल कि यहीं के आसपास ये कैंडल बनी और 50 पॉइंट नीचे आ गई, तो अब ये कर देगा। ये है गेस वर्क। लेकिन हमारा सेटअप क्या है कि यहाँ पहले 5 मिनट्स ईएमएस के नीचे तो ले जाओ बाज़ार को, तब बात करेंगे कि मार्केट नीचे जाएगा। तो ये सब चीज़ें, अब जैसे ये दिन था, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस एक अच्छा खासा हिट हो गया। मतलब ऐसा हिट हुआ कि बाज़ार ने जैसे कि अ, मतलब बता दिया हो कि बाज़ार से आगे तो मतलब कोई नहीं है। जबकि कितना प्यारा रीटेस्ट सक्सेस और ये हो ही रहा था, और यहीं पे हमने ट्रेड लिया था। लेकिन फिर बाज़ार ने एक्सपायरी वाला काम किया कि किसी को नहीं पैसे देना है, तो हम भी यहीं निकल गए थे। एक हमारा 20-25 रुपए का स्टॉप लॉस था। लेकिन ये गेस वर्क नहीं है भाई। बाज़ार आप देखो उस दिन कितने बार ऊपर नीचे किया, लेकिन फिर ये जो मूव उसने दिया कि ये अब नीचे आने वाला है, फिर ये जब करने लगा तो मैंने कहा हम इतना वेट किए थे उस दिन, लेकिन फिर मैंने कहा चलो एक अटेम्प्ट मारते हैं। तो हमने वो अटेम्प्ट किया, फेल हो गया, दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम कल भी डरेंगे। कल भी मार्केट मान लो ये ऐसे ऐसे रीटेस्ट सक्सेस करता है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि हम इस दिन को पकड़ के बैठे रहेंगे कि यार बाज़ार ने तो उस दिन स्टॉप लॉस हिट कर दिया था और मेरे साथ में 150 मेंबर हैं, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। ऐसा करते वेट करते ना, यही तो हम लोग नहीं करते हैं। हम कल कल अगर ये मिला और 3 आर्ली ईएमएस के नीचे बाज़ार मिला, तो हम कल फिर इसके लिए खेल सकते हैं। क्या बड़ी बात है, ये तो होगा ही। ये आपको 10 में से 4 बार तो ये बाज़ार करता ही है भाई। अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड बनाया है, तो उसकी भी रीजनिंग क्या गलत है कि उसने ये प्राइस एक्शन के बेसिस पे यहाँ पर और शॉर्ट ऐड कर लिए। लेकिन वो किसी का प्राइस एक्शन होगा, हमारा क्या है, हम 100 SMA को लेकर के खेलते हैं, तो 100 SMA पे तो नीचे नहीं गया। तो फिर सो दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज से कि आप अगर प्राइस एक्शन पर खेल रहे हो तो फिर पूरी ज़िंदगी ही प्राइस एक्शन को सीखने में लगा दो। आप ईएमए कर रहे हो तो फिर ईएमए ही करो ना, 2 4 5 10 साल, तब आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि गैप डाउन हम और गैप अप कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कशन खींच गया ये। नाउ कमिंग टू दी दिस टी लिम्स हम लोग अभी स्किप करेंगे यहाँ पे। और लिम्स सेम एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस सेशन के डबल कंफर्मेशन है। अगर ऑप्शन पर भी बुलिश क्रॉसओवर है कॉल ऑप्शन में, और आपके स्पॉट में भी बुलिश क्रॉसओवर है, तो वी विल गो लॉन्ग। और अगर बेरिश क्रॉसओवर है स्पॉट पर और बुलिश क्रॉसओवर है ऑप्शन पर जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो हम पीई ऑप्शन ट्रेड करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड लिम्स। मतलब जब लिम्स पर कोई ट्रेड करे, या हम जब लिम्स पर ट्रेड करें, इन दैट केस वी डू नॉट नीड टू सी एनी अदर थिंग कि क्या न्यूज़ है, क्या रिलायंस क्या कर रहा है, या एचडीएफसी बैंक या एचडीएफसी ट्विंस क्या कर रहे हैं, या बजाज ट्विंस क्या कर रहे हैं। तो फिर हम केवल लिम्स को ही सब कुछ मान के ट्रेड करते हैं, और उसका सक्सेस रेट भी काफ़ी हाई है दोस्तों। अगर आप ये डिसाइड ही कर लेते हैं कि हम केवल लिम्स के बेसिस पे ट्रेड करेंगे। एंड उसके पहले अपने पास एक एक्सटेंशन था ईएमए सेटअप का, जहां पर हम लोग वोलाटिलिटी को एनकाउंटर करने के लिए मल्टीपल ऑर्डर्स डालते हैं सिस्टम में, जहां पर वोलाटिलिटी बहुत बढ़ी हुई है। इन दैट केस वी ट्राई टू सेफ गार्ड आवर रिस्क के अगर हम पहली ट्रेड ही 25% स्टॉप लॉस के साथ में ले लेंगे और वोलाटिलिटी बहुत हाई है,
तो हमारे स्टॉप लॉसेस दोनों तरफ ट्रिगर होंगे, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग योर सेटअप इज़। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल ऑर्डर्स, दैट इज़ व्हाट हम वी हैव बीन डूइंग। आप देखिए यहाँ पे, दैट इज़ दिस, जब हम पार्ट ट्रेड लेते हैं ना, पार्ट, फॉर एग्जांपल ये हमने एक मैसेज लिखा, इन 2 पार्ट्स वी आर एंटरिंग। तो यहाँ पर हम क्या है, ये मूव सेटअप है कि मल्टीपल ऑर्डर्स हमने इसे डिसाइड किया कि क्योंकि आप ये देखो उस दिन का मूव देखो, मतलब विक्स कोई ऐसा बहुत बढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन टॉप से 130 पॉइंट डाउन, ठीक है, टॉप से 130 पॉइंट डाउन। और ये भी रेंज कोई ऑप्शन बायर के लिए कोई बहुत छोटी रेंज नहीं है, ये भी 80 पॉइंट्स का रेंज है। तो अगर बाज़ार 60 पॉइंट अप, फिर 30 पॉइंट डाउन, फिर 50 पॉइंट अप ऐसा कर रहा है, तो हमने सोचा कि चलो एक बार मल्टीपल ऑर्डर्स देखते हैं। 2 ऑर्डर बहुत थे, लेकिन वो भी बाज़ार ने, जब वो ये जर्क आया तो वो भी हमारा चला गया उस दिन पे। लेकिन हमने कितने पैसे खोए उस ट्रेड में? हमने केवल 10 रुपीज़ खोए उस ट्रेड में, मतलब नॉट इवन, मतलब 11-12% का हमारा रिस्क था उस ट्रेड में, 13% का। और वैसे हमारा नॉर्मल जो स्टॉप लॉस रहता है, दैट यू ऑल नो कि 25% ऑलमोस्ट, या एक फेज था जब हम वी हैव बीन ट्रेडिंग विद द 30% स्टॉप लॉस, बट वो था, एक फेज़ निकल गया। अभी हम लोग तो बहुत छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ में ही ट्रेड कर रहे हैं और करते रहेंगे, ऐसे ही चलेगा अभी कुछ और दिन तक। सो दिस इज़ अबाउट दिस। और स्कोप में मैं बार बार बताता हूँ कि हम लोग निफ्टी पे ही फोकस करते हैं ऑलमोस्ट ऑन ऑल डेज। बैंक निफ्टी हम लोग रेयरली, शायद मेरे ख्याल 4-5 बार से ज़्यादा ट्रेड नहीं किया है जब से हमने ये शुरू किया है। और स्टॉक्स के नाम ये लिखे हुए हैं, ठीक है, बजाज ऑटो फाइनेंस और TCS, HDFC, इन्फी, मारुति, रिलायंस, ये सब वो स्टॉक हैं जो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं निफ्टी की प्राइस एक्शन के हिसाब से चलते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो कुछ ऐसे स्टॉक जो निफ्टी के लाइन पे चलते हैं, हम उनको ट्रेड करते हैं। इन्वेस्टिंग के लिए हमने ना बोल रखा है कि EMA सेटअप और कोई भी सेटअप आपको इन्वेस्टिंग में पैसा बना के नहीं दे सकता है। इन्वेस्टिंग इज़ ओनली, यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी एंड टाइम इन गुड कंपनीज। कमोडिटीज़ हमने एक ट्राई किया था स्टार्ट करने का, काफ़ी अच्छा चला कुछ दिन, फिर उसके बाद फिर हमने इसको बंद कर दिया ड्यू टू पर्सनल रीजंस भी, कि आप कितना ट्रेड करोगे। 11 बजे 12 बजे रात में कमोडिटी बाज़ार बंद होता है, तो थोड़ा सा हेल्थ मेरी अफेक्ट होने लगी थी। अदरवाइज़ हम कमोडिटी में जब करते हैं तो हमारा डिसीजन पॉइंट हमेशा 3 आवर्ली रहता है, ठीक है, नॉट बिलो देन 3 आवर्ली टाइम फ्रेम EMAs, अगर आपको कमोडिटी करना है। लेकिन रिस्क के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर आप कमोडिटीज़ करते हैं, तो अगर आपके पास कैपेसिटी है 25 लॉट्स करने का, तब आप एक लॉट लेने की हिम्मत कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल सबने वो क्रूड माइनस में जाते हुए देखा होगा, -25% क्रूड। तो वो एक दिन काफ़ी है कमोडिटी ट्रेडर को, मतलब सब कुछ ख़त्म कर देने के लिए। तो ये सब रीजंस की वजह से फिर मैंने कमोडिटी भी बंद कर दिया। मैंने कहा फोकस करते हैं केवल निफ्टी पे, और वो भी मोस्टली इंट्राडे पे। इतना बहुत है अपने ज़रूरत भर का पैसा बाज़ार से निकालने के लिए। और अगर आप रिस्क रूल के साथ में करते रहेंगे तो अच्छा ही करेंगे।
कई बार हम लोग प्राइस एक्शन भी इन्फ्यूज़ कर दिया करते हैं ट्रेडिंग में, और उसका एक पीडीएफ भी अपने ग्रुप में पड़ा हुआ है, और मैंने कितनी बार बोला है कि आप लोग उसको पढ़िए। आई डू नॉट नो कि कितने लोग उसको पढ़ते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन में मोस्टली आपको दो चार चीज़ें ही दोस्तों देखनी है अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं। भाई आप देख रहे हैं कि एक कोई फ्लैग पैटर्न बन रहा है, या राउंडिंग बॉटम है, या राउंडिंग टॉप है, या डबल टॉप बन रहा है, या मतलब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, इस तरीके की चीज़ें वो उसके लिए कोई बहुत आपको रॉकेट साइंस टाइप पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है पैटर्न्स को समझने के लिए। और अगर जब भी कुछ लगता है तो मैं फिंगर स्वाइप स्क्रीनशॉट आपको दे ही देता हूँ। तो इतना ही है दोस्तों। रिस्क रूल पहले भी मैंने बता रखा है, और आज एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि आप 10%, 8%, 6%, ये आपकी 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए अगर हैं आपके पास तो मत करिए इससे ज़्यादा इम्पोज। और अगर 50,000 रुपये भी जिसके पास कैपिटल है और वो 10% के रिस्क रूल से चल रहा है, तो वो 10 लाख वाले पे भारी पड़ जाता है लॉन्ग टर्म में। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि 50,000 का वो 10 लाख 6 महीने में बना लेगा हमारे साथ में, क्योंकि अभी तो जनवरी तो हमारा फ्लैट ही मामला रहा ना, कहाँ हम बना पाए पैसा। लेकिन ये भी तो है कि हम खोए भी तो नहीं पैसा। यहाँ तो कितने लोग हैं जो जो बाहर चले गए हैं, अब उनको बाज़ार में आने में शायद बहुत महीने भी लग सकते हैं। लेकिन जब एक भी हफ्ता या एक हमारा 2 हफ्ते ऐसे चले जाते हैं जहाँ पे बाज़ार हमको ऑबलाइज कर देता है, तो मैं देखता हूँ कितने ही लोग क्या क्या नहीं मुझे मैसेज लिख के भेजने लगते हैं कि हम तो अब पूरे महीने का मेरा काम हो गया, और ये सब चीज़ें हमने करी हैं पास्ट में, फिर करेंगे दोस्तों। तो दिस इज़ द थिंग। और ये साइकोलॉजी और पोजीशन साइज़ कैसे इंक्रीज़ करनी है, इस पे हम लोग पहले भी काफ़ी बात कर चुके हैं। और ये बिलीफ सिस्टम और ये शेकआउट, ये तो हम लोग हमेशा मैं ऑडियो और इन सब चीज़ों से कितनी ही बार बता चुका हूँ कि फेथ एंड परसीवरेंस, शेकआउट्स, आपका अपने बिलीफ सिस्टम पे मतलब इतना कन्विक्शन होना चाहिए, आपको अपनी लर्निंग्स पे इतना कन्विक्शन होना चाहिए कि आप ये समझ जाएं कि जो ये फेल्योर आया मेरी ट्रेडिंग लाइफ में फॉर द टाइमिंग, ये फेल्योर नहीं है, ये शेकआउट है। लेकिन आप देखो कि हमारे ग्रुप में कोई बंदा आता है, फिर वो चला जाता है, फिर वो कहीं और जाता है, या कुछ ऐसा होता है। अभी कितने 150 हैं, ठीक है। तो इसमें अभी देखें, अभी की बात करें तो कितने लोग इस समय एक्टिव हैं। अभी हमारे साथ में 32 मेंबर्स हैं जिन्होंने ये मैसेज देखा, ठीक है। यहाँ पर 60 लोग हैं जिन्होंने ये मैसेज देखा, तो उसमें से हम मान लेते हैं कि 20 लोग जो होंगे वो भी वीकेंड आउटिंग, मूवी और ये सब चीज़ें कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो पेशेंस लेवल है अपने मेंबर्स में, कुछ के अंदर तो इतना गजब का पेशेंस और ये सब चीज़ें हैं कि मुझे अब उनको ये नहीं बोलना पड़ता है कि आप अभी और वेट करो मेरे साथ में। मतलब उन्होंने एक तरह से ये कि जब तक हम हरी भाई करेंगे ट्रेडिंग और ये सब करेंगे, तब तक हम भी करेंगे। उन्होंने अपना मैनेज किया। आई डू नॉट नो एग्जैक्टली कि उन्होंने कैसे रिस्क रूल लगाया होगा या कुछ, लेकिन उनके चैट पैटर्न से मैं ये समझ जाता हूँ कि दे आर इन मच 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 कंफर्टेबल पोजीशन बीइंग विद मी अंडर माय मेंटरशिप। और वहीं पर कोई बंदा है जो 4 दिन पहले आया और मतलब 4 दिन के बाद वो चले गए। तो खैर अब तो हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप कितनी बार किसी से पूछेंगे कि आप क्यों गए। भाई सबका अपना अपना कोई
कोई पैमाना है, कुछ सेट किया है किसी ने कि भाई ठीक है चलो तुम्हारे 4 ट्रेड तुमने दिए 2 दिन में, 2 फेल हो गए 2 पास हो गए, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चलो टाटा बाय बाय। तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी दोस्तों। और खुशी इस बात की है कि हम इतने बार भी हम लोगों को शेकआउट्स आए, लेकिन एक बार तो थोड़ा सा डार्क फेज भी था कि यार पूरे हफ्ते का हफ्ते ऐसा लगा कि बाज़ार तो कुछ करके ही मानेगा, कोई सेटअप फॉलो नहीं, कुछ नहीं। और हमने भी ब्लंडर्स किए, लेकिन उन सब के बावजूद भी हम लोग फिर से संभलने लगे हैं जनवरी ख़त्म होते होते। और फरवरी का हमारा जो स्टार्टिंग है वो काफ़ी ठीक हुआ है। तो मुझे लगता है कि सूनर देन लेटर वी विल बी ऑन ट्रैक। और विद दिस नोट मतलब मेरी तरफ से आई कंक्लूड दिस। अब किसी को कुछ पूछना है या इस फाइल ये सबके साथ में पब्लिकली अवेलेबल है, आप पढ़िए। कुछ और लगता है कि आपको जानना ज़रूरी है, वो सब चीज़ें आप ओपनली ग्रुप में लिखिए। और अब क्या एक अच्छी बात ये है, हाँ सरप्राइज़ वाली बात अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम लोग ऑडियंस टर्न लेंगे। दोस्तों ये मेरा एक यूट्यूब चैनल था, इसको मैंने काफ़ी पहले बनाया था और बड़े जोश के साथ में बनाया था। कुछ टाइम कमिटमेंट नहीं फुलफ़िल हो रहा था और कुछ चीज़ें थी जहाँ पे चीज़ें थोड़ा ऑन ट्रैक नहीं थी। लेकिन अब ये चैनल पर हमने डिसाइड किया है कि फिर से अब कंटेंट क्रिएशन हम करेंगे। हालांकि कंटेंट क्रिएशन तो हमने कभी किया ही नहीं, लेकिन अभी थोड़ा चीज़ें ठीक हुई हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अपलोड किया है वीडियो, कहाँ गया ये वीडियो, देखिए अपलोड हो चुका है। ठीक है, ये जो फर्स्ट पार्ट था, और अभी ये अपना रिकॉर्डिंग देखिए हो रहा है, ये नया वाला ये जो चल रहा है। तो ये दोनों पार्ट हम यहाँ पर अपलोड करेंगे और वो लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा। दिस इज़ नॉट द सरप्राइज़, द सरप्राइज़ इज़ कि ये जो हम टेलीग्राम के थ्रू आपसे बात करते हैं ना कि ये गोल्ड कहाँ गया, ये डू नॉट सरेंडर और ये सब चीज़ें जो बात करते हैं वो हम लोग वीडियो के थ्रू करेंगे। मतलब कुछ चार्ट पे चल रहा होगा, कुछ हम बोल रहे होंगे, चार्ट पे हम उसको दिखा रहे होंगे आपको, और वो जो हम बोल रहे होंगे वो चार्ट में हम आपको मार्किंग करके दिखा रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा कि बिलीफ सिस्टम, तो ऐसा मैंने कुछ सोचा है कि वो मैं चार्ट यहाँ पर लगाऊंगा, फिर मैं कुछ सेलेक्ट करूँगा, कुछ लाइन खींचूँगा और फिर मैं बताऊँगा कि देखो ये है बिलीफ सिस्टम। और अगर आपने लर्निंग्स को जाना है, लर्निंग्स को अगर माना है, तो आपको बाज़ार ये दे सकता है, ठीक है, ये मूव्स दे सकता है। या अभी अभी हमारा मानना है कि जैसे यहाँ पर लर्निंग्स क्या है, यहाँ पे कि गोल्डन बेरिश क्रॉसओवर हो चुका है। तो जब तक ये वाला एरिया कटता नहीं है ऊपर की तरफ डिसाइसिवली, बहुत बड़ी ट्रेड लॉन्ग साइड में मिल जाएगी, दैट आई एम डाउटफुल। तो इस तरह की चीज़ें मैं बना के थोड़ा थोड़ा डालूँगा, तो उससे क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। और लोग, जिन लोगों को लगता है कि बहुत हम लोग इनएक्टिव रहते हैं और ये सब चीज़ें, तो वो थोड़ा सा एक नए तरीके से लाने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड माय डियर फ्रेंड्स। अब लेट अस टेक दी क्वेरीज वन बाय वन। ठीक है, नेक्स्ट 30 मिनट्स हम लोग और कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट एट्सेट्रा आप पूछिए, हम जवाब देंगे। अंकुर, अतुल और कॉमर्स, देवेंद्र का भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रहा है मेरे साथ में काफ़ी दिन देवेंद्र ने ट्रैक किया,
काफ़ी चीज़ें हुई। राजकुमार जी, मनोज, सुशांत का भी, दैट आई रिमेंबर द टॉक। यस देवेंद्र कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। देवेंद्र अनम्यूट योरसेल्फ, बोलिए। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते देवेंद्र। ये सर, मैं जब से आपके साथ जुड़ा हूँ हम्म। तब से मतलब कंफर्ट आ गया ट्रेडिंग में बहुत तगड़ा। और ये सुन के हमको अच्छा, देवेंद्र, हमको जितनी खुशी होती है ना, उसका कोई पैमाना नहीं है कि हम कैसे उसको बयान करें। सर आप मानोगे नहीं, मैं कम से कम 20 से 25 मतलब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है मैंने कम से कम अब तक। हाँ हाँ। और पिछले 2-3 महीने से मैंने सारे हटा दिए। अच्छा। हम्म, नहीं, अच्छी बात है। हम ये नहीं कहते कि कोई, भाई देखिए, आपका एक लॉस का कोई लिमिट है, ठीक है। तो जैसे आप कहाँ तक किसी को बर्दाश्त करोगे, ये भी एक चीज़ है। तो उसमें मैं कभी ये नहीं कहता किसी को कि भाई, जैसे अपने साथ में एक अरोड़ा साहब थे, नहीं यार उनका नाम मैं भूल गया इस समय। अ, एक मिनट में अपने इसमें चैट में देख के बताता हूँ नाम उनका, क्या नाम था यार। रमन सिंह, रमन सिंह थे, नाम लेना मतलब ऐसा वो नहीं है, लेकिन रमन सिंह का, भाई रमन सिंह ने बना लिया था कि उनका एक लिमिट है कि अगर इतना लॉस हो जाएगा तो वो हमको छोड़ देंगे। हालांकि कई बार हमने रमन जी से पूछा भी कि रमन जी अगर आप आना चाहें कोई फ़ीस नहीं लेंगे, हम आपसे कभी नहीं लेंगे, ठीक है, बस आप आ जाइए एक बार, और आप ट्रेड ना भी करिए तो चलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, वो क्योंकि उनका काफ़ी बड़ा बिजनेस है, काफ़ी काफ़ी चीज़ें बहुत अपने शहर के काफ़ी जाने माने बिजनेसमैन है वो। और बात हुई मेरी उनसे अच्छी खासी, काफ़ी लंबी। तो उन्होंने कहा नहीं सर, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, और आपसे पहले भी मैंने बहुत लोगों के एडवाइस पे, आपके साथ तो मैंने कुछ भी पैसा नहीं खोया है कंपैरेटिवली देखें, लेकिन ठीक है मेरा हो गया, तो मैंने उनको कोई प्रेस नहीं किया। लेकिन Yes. लेकिन कई बार लोग हैं वो मतलब केवल इसलिए कि चलो ठीक है यार, कुछ तो कुछ ऐसा है कि कम से कम कोई हमको कोई भाग तो नहीं रहा है सामने से। तो कि कुछ लोगों के लिए वही बहुत बड़ी चीज़ होती है कि बंदा सामने से लगा ही हुआ है, लगा ही हुआ है, तो यार कुछ तो बात है, देखते हैं चलो। तो ये सब चीज़ें हैं, अपना काम हम कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। और ये करते करते कभी कभी देवेंद्र क्या होता है कि वो वो एक ब्रेकआउट आ जाता है ना, वो ब्रेकआउट बता के नहीं आता है आपके आपके ट्रेडिंग जर्नी में। Yes, sir. मतलब कि आप बैक टू बैक, आप आप बाउंस बैक तो छोड़िए, आप रूफ के ऊपर निकल जाते हैं कई बार। लेकिन वो कब होगा वो कोई बता के थोड़ी होता, क्योंकि मार्केट ही जब बता के बाज़ार मूव नहीं देता है तो हम कैसे बता दें कि वो समय कब आएगा। लेकिन हम सब उसी का इंतज़ार कर रहे हैं ना, मतलब सही है सर। वैसा वाले फेज़ का हम इंतज़ार कर रहे हैं, और ये आएगा, अपने ही सेटअप पे आएगा कि जहाँ से हम मतलब कि हम टर्न बैक ही ना करें। तो वही Yes, sir. वही वही मेरी एक कोशिश है कि गलतियों से सीखें और आगे बढ़ते रहें हम लोग सब मिल के। और बाकी तो दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है देवेंद्र, और चलता रहेगा। हम हर एक को हाँ, हर एक को हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते। तो ये है आपका, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू। अब अतुल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। हाँ हरी सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अतुल, नमस्कार। हरी सर, हम तो आपका सर खाने के लिए हैं, भागने वालों में से है ही नहीं। और
एक अच्छी चीज जो मैंने सीखी आपसे, हाँ। अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग, पहले मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग से इतना डर लगता था, लोग इतना डराते थे, अच्छा। वो जो कॉन्फिडेंस, बस 2 साल से ज्यादा हो गया हमें एक दूसरे से जुड़े हाँ हुए, हाँ, बहुत टाइम हो गया भाई, बहुत टाइम हो गया है। वो कॉन्फिडेंस जो आपने मुझे दिया ऑप्शन ट्रेडिंग में ना, इट वाज मार्वेलस। और अपार्ट फ्रॉम दैट, एक जो आपसे जुड़ के आपके ग्रुप से जो एक वाइब्रेशन आती है, मेरे लाइफ में बड़ा टफ फेज था जब मैं आपसे जुड़ा था, अच्छा। देयर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, मतलब आई वुड नॉट रिवील दिस, मैंने आपसे तो बात की ही थी, तो हाँ उस टाइम हाँ। थोड़ा स्ट्रगल चल भी रहा था कई फ्रंट पे, लेकिन यस आपसे यस। जुड़ने के बाद जो कुछ आपकी जो साइकोलॉजी बेसिस, मतलब साइकोलॉजी और आपकी जो फिलोसफिकल बातें होती हैं, हम्म। दैट गोना हेल्प मी अ लॉट टू ब्रिंग मी बैक। मैंने फिर बैक किया, और इस हम्म। समय विद गॉड ग्रेस, आप सबके आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा ऐसी है कि अभी सब कुछ बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, जो कि बहुत बियॉन्ड द कंट्रोल हो गया था। हाँ हाँ। तो जो लाइफ लेसन आपसे मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिंग लेसन, वो तो अपनी जगह पे, लेकिन मेरा ये है मानना कि आप पेशेंस आपने सिखाया, और पेशेंस से बड़ी चीज आपने सिखाया परसिवरेंस, जो आपके साथ मिलता है, ट्रेड नहीं लेना हम्म। नहीं लेना नहीं लेना, करने दो यार, ये भी देख, फिर उसमें अपने जो और लोग हैं मेंबर्स भी कुछ ना हाँ कुछ डालते रहते हैं, वो चीज सीखना बहुत, ये परसिवरेंस जो सीख गया ना लाइफ में, तो मुझे लगता है कि दैट पर्सन कैन डू वंडर इन लाइफ अपार्ट फ्रॉम हाँ। ट्रेडिंग। तो नहीं, वो चीज बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, कभी कभी अपन मतलब वो हो जाते हैं, तो उसको प्लीज डोंट टेक अदरवाइज। नहीं नहीं, वो अतुल पार्ट है, क्योंकि भाई हाँ हाँ हाँ, फैमिली है तो फिर ये सब तो होगा ना। बिल्कुल। तो वो ठीक है, वो रात गई बात गई, और अभी तो हम, हाँ हाँ बस उतना ही है अतुल। और मुझे तो अभी कल हम लोगों ने भी 2 घंटे बात करी कल अपने फैमिली ग्रुप में। वो जी जी, वो कुछ इश्यू था। रात में हाँ, रात में तो कितनी देर बात चली हमारी वहाँ, मेरे ख्याल से डेढ़ लंबा। डेढ़ बज गया था रात में बात करते करते, लेकिन हाँ, लास्ट 1:15 का देखा मैंने, हाँ। 1:15 AM था वो। तो यही दैट इज। और मैं तो एक चीज़ में केवल यकीन रखता हूँ कि अपने को कल को जब हम कहीं भी रहें, अपने को गिला शिकवा नहीं होना चाहिए कि जो हमने स्टार्ट किया, जब हम आधे रास्ते में उससे वापस मुड़ जाएं। या तो भाई आप उसको अंजाम दो, जो काम आपने अपने हाथ में लिया है आप उसको अंजाम दो। तो हमारा काम ये नहीं है कि हम आपको कोई बहुत मतलब ऐसा बना दें कि आप मर्सिडीज़ खरीदने लग जाएं ऑप्शन बैंक से, नहीं। मेरा ये है कि आप सीख जाएं कि जब, क्योंकि सीख जाएंगे तो एक क्या 4 मर्सिडीज़ भी आ जाएंगी आपके पास। लेकिन वो जो सीखना है, वो सीखने के प्रोसेस में सीखते सीखते ही कब हम एक इस्टेब्लिश ऐसे बाज़ार के हम प्लेयर बन जाएंगे, हमको एहसास भी नहीं होगा। लेकिन उसके पीछे जो कहते हैं कि बहुत सालों का संघर्ष होता है, तो ये जो सब चल रहा है ये क्या है? ये वही संघर्ष ही तो है ना। कभी हम गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर अपने ग्रुप में कुछ खटपट हो जाती है, फिर कुछ आके कोई संभाल लेता है बात को, फिर हम आके आगे से फिर एक अचानक से हम लोग को एक ऐसा सेटअप मिल जाता है, मतलब एक ट्रेड मिल जाता है, फिर वो पूरे हफ्ते वो पॉजिटिविटी बनी रहती। ये सब क्या है? यही तो है ना कि हम लोग गिव अप नहीं कर रहे हैं। और ये कोई आसान काम नहीं है। आप कितने ही टेलीग्राम से जुड़े रहते हो, तो मतलब जनरली क्या होता है कि 4 दिन आपने 4 हफ्ते का कोई टिप लिया, वो उसके बाद आपको ब्लॉक कर दिया, फिर यह पता चला कि 4 महीने तो ग्रुप ही की लाइफ नहीं रही, मतलब ग्रुप बंद हो गया। यहाँ हम लोग क्या है कि 2 साल से ऊपर हो गया है, और उसी शिद्दत के साथ हम लोग साथ में। 2.5 साल हो गए सर, हमें लगता है 2.5 साल हो गए, नहीं है, ज्यादा हो नहीं गए। नहीं, 2021 का जनवरी हाँ महीना, हाँ, 2000। ये जनवरी था, करेक्ट करेक्ट हाँ, करेक्ट। अभी तो फरवरी है ना, तो 2 साल से थोड़ा सा ऊपर हाँ, टाइम दो हुआ। साल से थोड़ा ऊपर हुआ है, हाँ। और पता नहीं चला, तो लगता है बहुत दिन हो गए हमें, ऐसा लगता है हम जिस तरह से बात हम लोग करते हैं उस ग्रुप में, ऐसा लगता है हम 20 साल से जुड़े हाँ हुए हाँ हैं। हाँ हाँ, सच में। मतलब कुछ भी तो कभी कभी हम लोग बात करना शुरू कर देते, मतलब कोई सिर पैर नहीं है किसी बात का, लेकिन सब लगे हुए हैं। तो और कल रात में भी तो यही बात हमने करी थी कि ठीक है, वो सब अपनी जगह है। अब एनीवन एल्स, राजकुमार जी अगर कुछ बोलना चाहें या कोई और, तो। हाँ योगेश। सर नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर ये सेंटिमेंट का बोला था, जैसे ग्लोबल मार्केट का हाँ सेंटिमेंट्स है हाँ जैसे अभी, हाँ हाँ, ये क्वेरी थी। और एक
जैसे अभी अदानी के स्टॉक्स पे न्यूज आई थी उस चीज को हाँ लेके, हाँ 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 हाँ। उस पे अपन कैसे ट्रेड करते हैं फिर? देखो योगेश, इसमें मेरा बिल्कुल क्लियर व्यू है। ठीक है, इतना ड्रामा हो गया अदानी में, इतना सब कुछ हो गया, मैंने अदानी पे कोई कमेंट नहीं किया। आप मेरा चाहे ग्रुप हो या ट्रेडिंग चैनल हो, आप देखो जाके, मैंने अदानी वर्ड ही नहीं लिखा है आज तक। ठीक है, उसके पीछे मैं दो रीज़न बताता हूँ। इसको आप चाहे सेंटिमेंटल कह लें या मेरा डिसिप्लिन कह लें या कुछ भी कह लें, मैं दो चीज़ बताता हूँ आपको इसके बारे में। देखो, दुनिया भर में बहुत प्रोपागंडा चल रहा है कि अदानी ये है, अदानी का डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ। एक तो हम ऐसे जो जो इस तरीके के मामले होते हैं जहाँ पे कोई बहुत बड़ा सेंटिमेंटल डेंट आ गया या कोई बहुत ख़राब न्यूज़ आ गई या वहाँ पे पूरा सब ड्यूबियस सा मामला है। ड्यूबियस इन द सेंस कि कल को कुछ पता नहीं है। अभी अदानी 70% डाउन है, कल को ये अपर सर्किट लगा लगा के ये 5,000 हो जाएगा, क्या मालूम है। और कब ये इसमें ट्रेडिंग बैन हो जाए, हो सकता है। मतलब आपका ऑप्शन वहीं का वहीं लॉक हो जाए, आप उसमें कुछ कर ना पाओ। एक ये चीज़ है। ठीक है, इतने हाईली ड्रामेबाजी में हम कभी ट्रेड करना पसंद नहीं करते। और ये मैंने पहले भी कहा है कि हमको ट्रेडिंग करके दिल की बीमारी नहीं मोल लेनी है। ठीक है, ये मैंने एक बार कहा था, एक स्पेस में कहा था। ये प्रणय था उस दिन और संडे का दिन था, शाम को चाय पीते हुए हम लोग बात कर रहे थे कि हमको ट्रेडिंग करके हमको अपने दिल को मजबूत रखना है। मतलब मुझे अपने मेंबर्स को मजबूती देनी है। अगर मेरा ये मानना है कि अगर आप इस तरह के न्यूज़ बेस्ड और ये सब में ट्रेड करते हो, हाँ किस्मत से आपको मूव मिल गया, ये डाउन मूव बहुत अच्छी बात है, आपने 50% का फॉल पकड़ लिया। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं ये न्यूज़ बेस्ड वाले जो इस तरीके की, और ये न्यूज़ नहीं, ये तो हाहाकारी न्यूज़ है, तो ऐसे में हम कभी ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। और और जहाँ तक आपकी ग्लोबल सेंटीमेंट वाली बात है, तो अभी हाँ ये बात सच है कि मार्केट में ग्लोबल सेंटीमेंट के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। ठीक है, चाहे वो अदानी ग्रुप हो या आपका डाउ का बाज़ार हो, सब आपस में इतना इंटरलिंक्ड हो चुके हैं आज की डेट में कि मैंने भी थोड़ा सा ये मतलब पहले था 1 साल पहले कि हम डाउ और ये सब नहीं देखते थे। लेकिन फिर एक दिन मैंने ग्रुप में मैसेज किया कि नाउ द टाइम हैज़ कम टू बी वॉचफुल ऑन द ग्लोबल फ्रंट ऑल्सो। मैं आज SGX देखूंगा रात में, और उस दिन हमारे पास पोजीशन थी। तो मैंने भी थोड़ा सा ये ग्लोबल मार्केट ट्रैक करना शुरू किया है, केवल इसलिए कि मेरी एक वॉचफुल रहे कि कल रात में SGX में क्या हुआ है, तो क्या उसका कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन ट्रेडिंग हम करेंगे अपने सेटअप से ही। हो सकता है कि कई बार वो 5 मिनट का सेटअप ना हो करके वो 1D का हो सकता है, या वो 3 आर्ली का सेटअप हो सकता है, या वो आर्ली का सेटअप हो सकता है। लेकिन दो चीज़ें बिल्कुल कंफर्म है कि एक तो हम ये बहुत हाई ड्रामे वाले स्टॉक में हम ट्रेड नहीं करेंगे। और जहाँ पे, और एक थोड़ा सा मेरा एक पर्सनल फ्रंट पे मामला मतलब मानना ये है कि इसमें कभी भी किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। मतलब ये मैं अपसाइड के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे लोग देश से जोड़ के देखने की कोशिश करने लगे किसी एक स्टॉक को, और मेरे ख्याल से ये अपने स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि किसी स्टॉक की ड्रामेबाजी को देश से जोड़ दिया जा रहा है। तो ये कब, मतलब मैं कोई इसमें ये नहीं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये हो जाएगा। लेकिन जब ऐसी चीज़ आती है ना कि जहाँ पे देश का सेंटीमेंट जुड़ जाता है, तो फिर जो बाहरी ताकतें हैं
वो कैसे तहस नहस हो जाती हैं, ये एक इतिहास बन सकता है। मतलब मैं आपको बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल को ये होने वाला है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कतई। लेकिन अगर अगर तो ये देशभक्ति का मामला बन जाए तो ये आपको होता दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इसमें क्या करोगे? आप इसमें, आपको भाई बहुत लगता है कि कुछ ऐसा है तो 1590 का भाव है, न सही 1590 रुपये, न सही 1590 रुपये आपने एक स्टॉक लेके डाल लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घर बेच के आप ये RSI 9-10 आ गया है तो यहाँ पे आप लगा दो, या ओवर सोल्ड हो गया है, या पी इसका जो है वो 400 से 120 आ गया है पी रेशियो, तो आप लगा दो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आपको अगर लगता है कि भाई यार जिसके ऊपर कोई देनदारी नहीं है तो कैसे, कहाँ तक गिरा देंगे इसको भाई? अगर एक कंपनी के बलबूते पे ही देश की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का ये हाल हो जाना है तो क्या हमारा देश चुप बैठेगा? हमको तो नहीं लगता है। और किस कदर इसमें कल को कुछ हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो योगेश, मैं ये सेंटीमेंट और ये इस तरह की चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अपने को बहुत शांतिपूर्वक ट्रेडिंग पसंद है। यस सर। अब राजकुमार जी हैं और मनोज, सुशांत, योगी, एनीथिंग इफ़ यू गाइज वांट टू आस्क, डिस्कस और वॉट एवर। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊं कि ये इस तरह के ये जो स्टॉक होते हैं ना, इसमें सबसे बड़ा खतरा क्या रहता है कि कल कल को एक्सचेंज का कोई डिसीजन आ गया, या आपकी ऑप्शन की पोजीशन फ्रीज हो गई, या इस तरीके का कुछ आ जाता है ना, और मान लीजिए कि आप अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है, आप अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए, आपने सोचा कि यार कॉल बेच देता हूँ, लो यहाँ पे आपने कॉल बेच दिया कि अब इसकी मजाल नहीं है कि ये 4000 रुपये के ऊपर चला जाए। आपने 1500 का रेट देखा और 3000 की कॉल बेच दी कि 2x थोड़ी ना हो जाएगा, ये तो 5 रुपये होने वाला है कल को। और खुदा न खास्ता ये इसमें कुछ ऐसा हो गया कि ये ऑप्शंस फ्रीज हो गए इसके, और फ्रीज पे फ्रीज, फ्रीज पे फ्रीज, तो ये सब बहुत डेंजरस हो जाता है। तो काहे को अपने को इस तरीके की चीज़ें करनी है? हाँ, कोई लकी होता जिसने यहाँ पे 1D EMA रिजेक्शन देखा होता, और ऑनेस्टली मुझे मैं ट्रैक भी नहीं कर रहा था इसको, ये तो सब मैंने अदानी और ये सब लगाया जब ये सब कांड होने के बाद। अदरवाइज़ वो एक था कि यहाँ पे शायद कुछ ऐसा था, बहुत खूबसूरत सा रिजेक्शन 1D EMA से, लेकिन अब चला गया तो अब क्या बात करनी है, अब तो बहुत कुछ नीचे हो चुका है। अब जब यहाँ पे ये सब कुछ हो चुका है तो यहाँ पे सेंटीमेंट और देशभक्ति और पता नहीं क्या क्या है तो ही जोड़ा जा रहा है इससे। तो इसलिए इसको हमने ना बात करी है और ना बात करेंगे इसकी अभी, जब तक ये सब सॉल्व नहीं होता है। और भी बहुत सारे हैं, आप बजाज ऑटो चलो डिस्कस कर लेते हैं इसको, इसकी जगह पर हमारा जो बजाज ऑटो का पोजीशन है ओपन, बजाज ऑटो हमने क्यों लिया है, एक इसको डिस्कस कर लेते हैं लास्ट में। हाँ, तो बजाज ऑटो को आप देखिए चार्ट पे। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल बजाज ऑटो, आप मेरी लर्निंग से क्योंकि मेरे पास मैं बहुत कंसंट्रेटेड ट्रेडिंग करता हूँ। एक स्टॉक मिल गया तो ठीक है, ये नहीं कि हम सारा दिन लगे नहीं रहते हैं दोस्तों कि हम इधर भी देख रहे हैं फिर कौन से स्टॉक में और ये सेटअप बन रहा है। नहीं, निफ्टी अपना बहुत है पैसे कमाने के लिए,
और मेरे पास और भी असाइनमेंट और ये सब ऑफिस का ये सब रहता है, तो मैं इसलिए बहुत कंसंट्रेटेड में, मतलब अगर मान लो मुझे 100 रुपये लगाने, तो 100 में से मतलब किसी पर्टिकुलर डे पे अगर मुझे 100 रुपये लगाने, तो 100 के 100 ही मोस्टली निफ्टी में ही लगेंगे। ऐसा नहीं कि मैं उसमें से 30 रुपये का ये ले लूँगा फिर 40 रुपये उधर, क्योंकि उससे भी लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ नहीं मिलता है। आप जब ब्रोकर को ही पैसा दोगे और चार चीज़ें देख के फिर वो एक कौन सा दोहा है कि मतलब आप एक को संभालेंगे तो सब संभल जाएगा, और जब सब पकड़ने जाएंगे तो सब बिखर जाएगा। वो ऐसा कुछ, एक के साधे सब सदे, सब साधे मर जाए, सब जाए। सब साधे सब जाए, करेक्ट हाँ। करेक्ट, यस यस। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी। तो अब बजाज ऑटो में आप देखिए कि क्या हुआ है, ये गैप फिल हो गया, ठीक है। मार्केट ऊपर से नीचे आया, तो जो उसका जो ये यहाँ पर जो प्राइसेस थे वो भी काफ़ी हद तक एक कंफर्ट जोन में है। गोल्डन बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है। रीटेस्ट सक्सेस ऑलमोस्ट एमिनेंट है इस लोकेशन पे। आप ईएमएस का लोकेशन देखो। और दोस्तों, हम कहते हैं कि निफ्टी कहीं भी कल चला जाए, अगर अपना ये ट्रेड फेल हो गया ना, तो मतलब बड़ा धक्का सा लगेगा। नॉट इन पैसे वाइज, तो पैसे तो बहुत कम लगाए हैं मैंने इसमें। अगर निफ्टी में 100 रुपये लगे हैं इस समय मेरे, तो इसमें 10 या 5 रुपये ही लगे होंगे। लेकिन फिर भी अगर इस तरह की ट्रेड फेल हो जाए ना, तो वो किसी मतलब दिल टूटने से कम नहीं है। क्योंकि ऐसा सेटअप दोस्तों, आप जाके देखो चार्ट पे, ये आपको क्या लगता है कि अपना जो ईएमए सेटअप है उस पे ये कोई नॉर्मल एक्शन है? ये एक्सक्यूज मी, ये नॉर्मल एक्शन नहीं है। आपको एक कंफर्मेशन इस जगह, इस कटान पे मिला है, गोल्डन बुलिश क्रॉसओवर। प्राइसेस ऊपर गया, अब नीचे वो नीचे आ गया। तो यहाँ पे जो कॉल में एंट्री किया, यहाँ जो कॉल में एंट्री किया, यहाँ जो कॉल में एंट्री किया, मार्केट ने सबको बाहर निकाल दिया है ऑलमोस्ट। और हमने यहाँ कहीं एंट्री किया है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर ये हो सकता है कल हमारे स्टॉप लॉस के भी नीचे चला जाए, लेकिन अब मेरा इस ट्रेड में प्लान ये कि जब तक ये 14 ईएमए के ऊपर रहेगा स्पॉट, तब तक हम ये इसके ऊपर के लिए हम खेल रहे हैं। मतलब 4000 का सी है ना हमारा, तो मतलब कहीं ना कहीं आप ये वाला जोन पकड़ के आप चल सकते हो। ये मतलब अब पता नहीं यार वो फेब में आएगा कि नहीं आएगा। अगर निफ्टी संभल जाता है यहीं से, अगर निफ्टी का चार्ट देखते हैं, थोड़ा लॉन्ग टाइम का चार्ट देखते हैं निफ्टी का, अगर निफ्टी में ये मंथली रीजनिंग काम कर जाए दोस्तों, खैर डेली में तो दूर दूर से कि कोई उम्मीद नहीं लग रही है मुझे अभी, ठीक है। लेकिन मंथली आप देखो, मंथली में अगर ये रीजनिंग काम कर जाए और बजाज ऑटो में ज़्यादा वोलेटिलिटी ना हो यहाँ पे, तो हमने मेरे ख्याल 23 रुपये का ऑप्शन लिया है। तो अगर इसमें हमको 5-7 रुपये तक भी देखना पड़ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन 5-7 रुपये तक भी देखना पड़ जाए तो और ये 14 ईएमए इंटैक्ट रहे इसके ऊपर प्राइसेस, तो टाइम करेक्शन में शायद अपनी प्राइस की ऑप्शन की प्रीमियम थोड़ा सा गलेगी। लेकिन कभी तो ये कुछ ऐसा बनाना चाहिए इसको यार, ये कुछ ऐसा बना के एक ही दिन लगेगा इसको, ये मतलब 8-10% करने में ये, और वो दिन हम पकड़ लेंगे अगर ऐसा हुआ तो। इसलिए दोस्तों वो ट्रेड दिए, मतलब आप ये सोचो कि छोटी सी देर में हम कितना कुछ दिमाग में हम चला के तब ट्रेड देते हैं। मतलब वो मेरे ख्याल 10-15 मिनट का टाइम था जब मैंने ये सब कैलकुलेशन कर ली दिमाग में। उसके बाद मैंने ट्रेड जब खुद ले ली,
और उसी रेट पे आपको भी शायद मिल ही गई होगी, 23 रुपये के आसपास ट्रेड दी थी, 23 रुपये पे मिल गई होगी, 23 रुपये 50 पैसे ऐसा कुछ। क्योंकि हम कभी ऐसा नहीं करते कि पहले दे दें और फिर टेस्ट करें उसको और फिर हम खुद लें, ऐसा हम कभी नहीं करते। जब हम ट्रेड ले लेते हैं या जैसे ही लेने ही वाले होते तभी हम ट्रेड देते हैं। हम ऐसी कोई आज तक ट्रेड नहीं रही है कि जिसको हमने ना लिया हो और आपको दे दिया हो, चाहे उसमें प्रॉफिट हुआ हो चाहे स्टॉप लॉस हुआ हो, वो नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ ना होगा दोस्तों। अब कुछ और बात करनी है दोस्तों तो आप कर सकते हैं, या आप टेक्स्ट भी कर दीजिएगा टेलीग्राम में। हाँ देवेंद्र, एक बार फिर से कुछ आप पूछना चाह रहे हैं? सर आप बोल रहे थे प्राइस एक्शन के रिगार्डिंग। हाँ जी, उसका कुछ सिखा सकते हैं आप? नहीं, प्राइस एक्शन का कोई बहुत वेटेज हम लोग नहीं देते हैं ना देवेंद्र। बस उतना ही वेटेज हम लोग देते हैं जितना हमारे सेटअप के परव्यू में आता है। क्योंकि प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही पूरी अपनी ट्रेडिंग कंटिन्यू करना, फिर वो एक अलग एरिया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ अभी, ठीक है? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये चार्ट है, ठीक है? अब अगर आप इसमें मतलब हम लोग ऐसा नहीं कि प्राइस एक्शन हम लोग करते नहीं है, लेकिन वो हमारा जो प्राइस एक्शन अगर कभी हम ट्रेड लेते भी हैं तो वो हमारे सेटअप पे पहले होना चाहिए। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है? जैसे ये, अब किसी ने कहा कि जी यहाँ पे जो है हमको कुछ डबल टॉप दिख रहा है, मतलब डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ दिख रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, तो हम यहाँ पे कॉल ले लेंगे। मतलब ये किसी ने कहा कि जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है उसने कहा कि ये हम देख रहे हैं कि डबल बॉटम है, ठीक है? उसने ले लिया, बिल्कुल वाजिब है उसका लेना। हम क्या देख रहे हैं कि प्राइसेस 100 SMA के नीचे नहीं जा रहा है, तो आप इसको ये कह सकते हो कि हमने प्राइस एक्शन तो हमने भी देखा, लेकिन हमने तवज्जो दी अपने 100 SMA को। अगर यही कारनामा 100 SMA के नीचे हो रहा होता तो शायद डबल बॉटम पे हम ट्रेड नहीं करते। मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। यस सर। हाँ, अब एक तीसरा ट्रेडर है, उसने इसी प्राइस एक्शन के बेसिस पे यहाँ शॉर्ट मार दिया। मतलब कि उसने देखा कि डबल टॉप से प्राइसेस 40 रुपये नीचे आ गई हैं, तो अब शायद ये इतना बुल में दम नहीं होगा कि वो यहाँ से 40 रुपये पहले खींचें और उसके बाद इसके ऊपर ब्रेक डाउन दें, लेकिन बाज़ार ने वो कर दिया। तो एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग यहाँ फेल हुई, एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग यहाँ पे सक्सेस हो गई। आप पीछे जाके देखें, ये एक डबल टॉप सॉर्ट ऑफ, मतलब डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ यहाँ पर बना, लेकिन हमने प्राइस एक्शन को ना वेटेज दे करके हमने EMA को प्रेफर किया, तो हम यहाँ पर फेल हो गए, ठीक है? एक जो है वो एक थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर प्राइस एक्शन को देख रहा है और उसने एक जोन बनाया अपना, उसने एक जोन बनाया कि ये वाला जोन होगा, वहाँ मैं एक्यूमुलेट कर लूँगा, ऐसा कुछ। उसने कहा कि 3 बार ऐसा हो रहा है कि प्राइस इस रेंज में आ रहा है, 17, 450, 470, 80, 90 ऐसे रेंज में आ रहा है, तो किसी ने यहाँ पे पूरा ही पकड़ लिया। भाई जब प्राइस यहाँ से भागा है तो ये अपने मन से तो नहीं भागा है ना, कोई ऐसा ट्रेडर होगा, कोई बड़ा फंड हाउस होगा, कुछ लोग होंगे बड़े खिलाड़ी जिन्होंने ये किया है, और उसके बाद एक छोटा सा नीचे डिप दे के वो ऊपर चलने लग रहा है। एक तीसरा ट्रेडर और है जो ये पकड़ के बैठा हुआ है। देखो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको देखना कैसे चाहिए हर चीज़। ऐसा नहीं है कि हम प्राइस एक्शन पे बात नहीं कर सकते, लेकिन
अब हम एक चीज़ को पकड़ के चलना चाहते हैं, इसलिए मैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोगों से नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि देवेंद्र ने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ। अब एक तीसरा ट्रेडर है जिसने ये चीज़ पकड़ के बैठा हुआ है कि यहाँ पे अगर मुझे मिल गया इस रेंज में तो मैं इसको फिर से मैं शॉर्ट कर दूंगा। तो अगर आप देखो तो फॉर द टाइम बिंग एक मोटा मोटी रेंज जो बाज़ार की है वो 17,400 से 18,100 या 150 ऐसा कुछ दिख रहा है मामला। आप थोड़ी रेंज और बड़ी कर दो अब, ठीक है, आप थोड़ी रेंज और बड़ी कर दो। एक ग्रुप है जो यहाँ से शॉर्ट में बैठा हुआ है, मतलब ये थोड़ा सा लाइन ऊपर हो गई, मतलब ये वाली ये यहाँ पे आप इमेजिन करो कि वो कितनी कंफर्टेबल पोजीशन में है। आप सोच सकते हो, मतलब ये मैं पोजीशनल नज़रिए से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे तो दुनिया जूझ रही होगी, ठीक है, और दुनिया जूझ रही है, मतलब कोई ऑप्शन बायर पुट वाला जो खरीद रहा है उसको लग रहा है कि बस अभी से क्रैश आ जाए, अभी से बाज़ार बर्बाद हो जाए। लेकिन वो 200 पॉइंट ऊपर गया तो वो उसका अकाउंट खाली होने की नौबत आ गई। एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। कॉल बायर प्रॉफिट में आ गया। अब कल को बाज़ार वापस यहाँ आ जाए तो पुट बायर जो था उसको तो शायद वो कॉस्ट पे आएगा, लेकिन जो कल कॉल में एंट्री कर लेगा उसका अकाउंट खाली होने की नौबत आ जाएगी कल, ठीक है। लेकिन जो पोजीशनल अपनी यहाँ बना के बैठा है वो केवल तमाशा देख रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि ये 500 पॉइंट की रेंज में क्या हो रहा है। वो तब निकलेगा जब बाज़ार इसके ऊपर जाएगा। तो ये एक प्राइस एक्शन देखने का ये नज़रिया है। आप समझिए बात को कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बिल्कुल अलग चीज़ है और हमारा जो सेटअप है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों इनलाइन हो जाते हैं तो वो एक एडेड अपने लिए एडवांटेज होता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि भाई आप हर दिन हर चीज़ पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। बाज़ार ललचाएगा, बाज़ार हालांकि हमको भी कई बार ललचा देता है कि ये तुम ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल दो और ऐसे में पोजीशन बना के बैठ जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इस बात को आप लोग कल सब लोग याद रखना, ठीक है, क्या कि भाई बाज़ार ने तो बजट डे वाला हाई जो है वो काटा नहीं है अभी तक। तो अगर यहाँ पे आएगा तो हम अपना तो पैसा हम लगाएंगे ही मार्केट में और सेविंग अकाउंट से डीमैट में उतनी ही रकम और डाल के शॉर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये बजट वाला हाई है और उसके बाद इतनी बड़ी रेड कैंडल आर्ली चार्ट पे बनी है, तो यहाँ से बाज़ार को दुनिया की कोई ताकत ऊपर नहीं ले जा सकती है। ये प्राइस एक्शन जो ट्रेडर है वो ये बोल रहा है, ठीक है, और शायद वो शॉर्ट करे भी। यहाँ पे सवाल ये है कि हम क्या करेंगे। तो हम वही करेंगे जो हम लोग अभी तक करते आए। क्या? 5 मिनट CMAs रीडिंग करेंगे, वहाँ से 100 SMA का डिस्टेंस देखेंगे, 3 आर्ली EMAs पे कितना दूर है मार्केट अपने स्पॉट प्राइस से, और 1D पे क्या वो 100 SMA के पास तो नहीं है। तो आप देखोगे कि जब बाज़ार यहाँ पे आ जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कल को आ जाए बाज़ार या खुले ही यहीं पे, तो आप देख लो, ये मार्किंग आप याद रखो और मैं इसको स्विच करता हूँ 1D पे, ठीक है। आप देखो ऑलमोस्ट हम लोग वहीं पे हैं, मतलब इसी के आसपास हैं। तो क्या हम तुरंत यहाँ पे बाई कर लेंगे? तो हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग अपने ही सेटअप से हम लोग करते हैं, और सक्सेस जो है लॉन्ग टर्म की सस्टेनेबल सक्सेस उसी में छुपी है कि जो आपने इतने दिनों से कर रहे हैं, अगर उस पे बहुत बड़े लेवल पे कोई डेविएशंस नहीं आ रहे हैं तो हमें क्यों, मतलब फिर सब चीज़ हमको क्यों ट्राई करनी है। तो इसलिए
हम बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन को वो नहीं करते। हाँ ठीक है, कुछ पैटर्न्स हैं, डे हाई डे लो, और राउंडिंग बॉटम राउंडिंग टॉप, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, वो सब तो सामने से दिख ही जाते हैं ना चार्ट में। 5 मिनट आप चार्ट लगाओगे आपको तुरंत दिखने लगेगा। तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी अलग से हम लोग को एनालिसिस करने की कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो ना, ये एक लेमैन की तरह से अगर हम इसमें सारे ये छोड़ दें, मतलब कि अपने ईएमएज और एसएमए को आप छोड़ दो, तो आपको बिल्कुल सीधा सा एक ही सपोर्ट इस बाज़ार में नज़र आता है, और वो सपोर्ट ये वाला है कहीं ना कहीं कि बाज़ार जिस तरह से ऊपर जा रहा था बिल्कुल उसी तरह से बाज़ार नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल मोर देन ऑब्वियस पैटर्न बाज़ार बना रहा है ना। इतना ऑब्वियस पैटर्न हमको तो नहीं लगता कि पिछले कई सालों में हमने ऐसा देखा हो, इतना गजब का ये। लेकिन क्या यही बाज़ार कर देगा तो फिर सबको सब नहीं ऑब्लाइज हो जाएंगे? तो बाज़ार क्या करेगा? दिख तो रहा है कि भाई ये कुछ ऐसा ही सा कुछ करने वाला है, लेकिन अगर यही करने वाला है बाज़ार तो ये मेरे ख्याल से आप ट्विटर पे जाओगे तो आपको 50 तो मैसेज ऐसे मिल जाएंगे स्क्रीनशॉट, जिसमें ये पॉसिबिलिटी कोई ना कोई तो बता ही रहा होगा। लेकिन अब ये बाज़ार करेगा नहीं करेगा वो हम एंटीसिपेट हम लोग नहीं करते। हम लोग देखेंगे ईएमए सेटअप पे क्या हो रहा है। तो वो मैंने बता ही दिया है आपको कि अभी क्या है। अभी तो मामला इंडिसीजन का ही फंसा पड़ा है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे कि 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम है, तो कल अगर इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल जाए जैसे यहाँ मिल गई थी, या कुछ और हो जाए, तो देखेंगे कल हम लोग कहाँ कैसे करना है। बाकी तो अभी इतना ही है अपने पास डिस्कस करने के लिए, और वाइंड अप करें दोस्तों, 4 बजने वाला है। यस सर। हाँ सर, कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। और काफ़ी अच्छा दिन रहा, अ डे वेल स्पेंट। बहुत दिन से पेंडिंग था ये सेशन। मेंबर्स की भी मेरे पास क्वेरी आ रही थी, और जिनकी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी वो उन्होंने अटेंड नहीं किया। लेकिन खुशी इस बात की है कि हम इसको रिकॉर्ड कर पाए आज का सेशन। तो उनका यही था कि हमें रिकॉर्डिंग करके दे दीजिए, क्योंकि हम बैंक में हैं और हम सीनियर पोजीशन पे हैं, तो शायद हम नहीं देख पाते हैं। तो ठीक है, ये सबके लिए एक लर्निंग और बहुत अच्छा दिन रहा। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।